یہ کہانی ہے طاہر اور زہرا کی، جنہیں مرنے کے بعد بھی جدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر عصمت نے ان کے دلوں کو ہمیشہ ایک ہی دھڑکن میں باندھ رکھا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ اکیلا اداس بیٹھا تھا تو اس کے بڑے وزیر نے اس کے پاس آ کر پوچھا، بادشاہ سلامت، آخر آپ کس بات پر اداس ہیں؟ آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، لیکن مجھے یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے کے بعد اس دنیا میں میرا نام اور نشان باقی نہ رہے گا۔ وزیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میرا بھی تو یہی حال ہے۔ بالآخر انہوں نے قلندر بن کر دنیا کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سفر پر نکلے، بہت دنوں تک چلتے رہے اور بالآخر ایک دن وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کے پاس آ گئے۔ درختوں کے نیچے قالین بچھے ہوئے تھے اور ان پر نرم گرم گدے اور تکیے پڑے تھے۔ یہ پیچھے بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک سفید باریش بزرگ سفید کپڑے پہنے ہوئے کہیں سے نمودار ہوئے اور مہمانوں کے پاس آ کر ان سے پوچھا، بیٹا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بادشاہ اور وزیر دونوں فوراً کھڑے ہو گئے اور اس بزرگ کو جھک کر سلام کیا، اپنے خیالات یکجا کیے اور آخر بزرگ کو بتایا کہ ہم دونوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بے فرزند ہیں، اس لیے ہم نے دنیا کے تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر درویشی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بزرگ نے ان کی باتیں خاموشی سے سن لی اور پھر اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 سرخ سیب نکالے اور ان دونوں کو ایک ایک سیب دیتے ہوئے کہا، یہ سیب لے لو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ گھر جا کر یہ سیب اپنی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ گھر جا کر اپنا کام سنبھالو۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھنا، تم میں سے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام طاہر اور بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام زہرا رکھنا۔ وہ جب تک چھوٹے رہے ان کو ایک دوسرے سے الگ نہ رکھنا اور بڑے ہو جائیں تو ان کی ایک دوسرے سے شادی کر دینا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ اور وزیر نے بڑے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں گھر لوٹ آئے اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا اس بزرگ نے کہا تھا۔ دن گزرتے گئے، خوشی سے بادشاہ اور وزیر دونوں کے پاؤں جیسے زمین کو نہیں چھوتے تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ فرزند کی پیدائش کے انتظار میں بتا رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر دونوں درباریوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے شکار کھیلنے چلے گئے۔ ان کو گئے 3 دن ہوئے تھے کہ ان کے گھروں میں خوشی کے نعرے بج اٹھے۔ دونوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے گئے۔ وہ دونوں ساتھ تھے۔ آنے والوں نے پہلے بادشاہ کو خوشخبری سنائی، عالی جاں انعام دیجیے، ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، عالی جاں انعام دیجیے، آپ کی بیگم صاحبہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ دن رات بیٹے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے پیغام لانے والی کی طرف ایک سفید رومال پھینکتے ہوئے حکم دیا، ابھی جا کے بچی کو مار ڈالو اور یہ سفید رومال اس کے خون سے رنگ کر لاؤ۔ جہاں تک وزیر کا تعلق تھا وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ دیوانوں کی طرح اچھلتا کودتا فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑتا ہوا گھر روانہ ہو گیا۔ اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ وہ زین پر سے زمین پر گرا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ لڑکا کافی بڑا ہو گیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر باہر سڑک پر آنے لگا، جو اس دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گیا تھا اور جس کو اپنے باپ کی صورت دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ایک دن وہ باہر سڑک پر کھیل رہا تھا کہ بادشاہ نے کھڑکی سے اس کو دیکھ لیا۔ یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس نے اپنے نئے وزیر سے پوچھا۔ نئے وزیر نے آدمی بھگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا آپ کے وزیر مرحوم کا بیٹا طاہر ہے۔ آپ کی بیٹی زندہ ہوتی تو وہ بھی آج اتنی ہی بڑی ہو گئی ہوتی۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کا دل تڑپ اٹھا۔ افسوس اور ندامت سے اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، لعنت ہو مجھ ایسے کمبخت پر، مجھ پر کون سا شیطان سوار ہو گیا تھا کہ میں نے اس کو مروا ڈالا۔ وزیر نے بادشاہ سے اس سلسلے میں اور کچھ نہ کہا، لیکن اس دن زنان خانے میں گیا اور کنیزوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے پوچھا، شہزادی کا کیا حال ہے؟ وہ زندہ ہے، کنیز نے جواب دیا، اب تو خاصی بڑی ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھا رنگ روپ پایا ہے، مگر آپ اس سب کا بادشاہ سلامت سے ذکر نہ کیجیے گا۔ لیکن وزیر روتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور آتے ہی کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے میری جان بخش دیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ ہاں سناؤ، بادشاہ نے ہدایت کی۔ عالی جاہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی زندہ ہے
बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने फौरन हुक्म दिया, इसको मेरे पास ले आओ। बच्ची को बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार किया। उधर ताहिर भी हंसता खेलता दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपने आंगन में अपने जैसे एक लड़के के साथ गली डंडा खेल रहा था। उसने एक दफा गली को डंडे से उछाला तो गली उड़ती हुई जाकर उसकी नानी के लगी, जो एक तरफ धूप में बैठी चरखा काट रही थी। बुढ़िया चिल्लाकर ताहिर को कोसने लगी, तेरी ऐसी की तैसी, नालायक, अपने बाप के बच्चे, तू मुझे क्यों छेड़ता है? जा अपनी मंगेतर जहरा के पास चला जा। ताहिर रो रो कर बुढ़िया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा, नानी जान, आप किस जहरे की बात कर रही हैं? आपने ये बात क्यों की? छोड़ दे मेरा हाथ। अबे बाप के लड़के, मैं कहती हूँ छोड़ दे अभी। बुढ़िया चिल्लाती रही, लेकिन ताहिर ने उसका हाथ ना छोड़ा और उसकी मिन्नतें करने लगा। मेरी अच्छी नानी, बताए ना आपने ये बात। आखिरकार बुढ़िया ने तंग आकर कहा, जा अपनी माँ से पूछ। ताहिर बुढ़िया को छोड़कर दौड़ा और अपनी माँ के पास पहुंचा और पूछा, अम्मी जान, मेरी मंगेतर कौन है? सच बताइए। ये बात तो तुम्हारे जानने की नहीं थी, लेकिन खैर बताती हूँ। माँ बोली और उसने सारी बातें ताहिर को बता दी। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अब तो जहरा तुम्हें मिलने से रही। वो ठहरी बादशाह की बेटी और तुम बेचारे एक यतीम हो। अम्मी जान, कोई बात नहीं, मैं बस सच्ची बात जानना चाहता था। इस दिन से ताहिर जहरा के साथ खेलने लगा। दिन गुजरते गए। वो दोनों मदरसे में साथ बैठते थे। ताहिर पढ़ता पढ़ाता खाक भी नहीं था, बस हर वक्त जहरा से बातें करता रहता था। एक दिन उस्ताद ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की, बादशाह सलामत, यतीम वजीरजादा ताहिर आपकी बेटी को पढ़ने लिखने नहीं देता है, हर वक्त उसको बातों में उलझाए रखता है, इसका क्या किया जाए? बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, इन दोनों के दरमियान एक दीवार बनवा दो। उस्ताद ने बादशाह के हुक्म की तामील की, लेकिन उसी दिन ताहिर ने दीवार में एक सुराख बना लिया और फिर पहले की तरह जहरा से बातें करने लगा। ताहिर और जहरा दोनों एक दिन भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, और जब दोनों बड़े हो गए तो उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत की आग भड़क उठी। ये बात बादशाह को मालूम हुई तो गुस्से से आग बगोला हो गया और कारीगरों को बुलाकर उनको हुक्म दिया कि एक संदूक तैयार करो। ताहिर को इस संदूक में बंद करके दरिया में डाल देने का इरादा कर लिया था। बादशाह का ये इरादा जहरा को मालूम हो गया। वो सोने से भरी हुई एक तश्तरी लेकर कारीगरों के पास गई और रोते हुए उनसे मिन्नतें करने लगी, ये सारा सोना ले लो, अगर इससे तुम्हारी तसल्ली न हो तो मुझसे और मांग लो, लेकिन संदूक ऐसा मजबूत बनाओ कि इसके अंदर पानी न जा सके। कारीगरों को जहरा पर रहम आ गया। उन्होंने सोना ले लिया और जहरा को तसल्ली दी, आप फिक्र न करें, सब ठीक होगा। आज उस संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया जाएगा। जल्लादों ने जल्दी से ताहिर को संदूक में डालकर उसका ढकना बंद कर दिया। ताहिर अपनी जहरा को पुकार कर बस इतना ही कह पाया, जिंदा रहा तो हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, और मर गया तो तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में लेकर जाऊंगा। जल्लादों ने संदूक उठाया और दरिया में फेंक दिया। ताहिर बहुत दिनों तक संदूक के अंदर दरिया में बहता रहा। बिलाखिर एक दिन संदूक रोम शहर जा पहुंचा। बादशाह रोम की दो बेटियां थी। उस दिन वो दोनों अपनी कनीजों के साथ दरिया पर नहाने आई थी। उन्होंने देखा कि दरिया में एक संदूक बहता चला आ रहा है। जब संदूक को खींचकर किनारे पर लाया गया, दोनों ने संदूक को खोला। क्या देखती हैं कि उसके अंदर एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान पड़ा हुआ है। इस दौरान बादशाह के नौकर दौड़े हुए बादशाह के पास गए और उसको खबर दी, आली जाह, आपकी बेटियों ने दरिया में एक संदूक पकड़ा है। उसके अंदर एक नौजवान था जो हुस्न में बेमिसाल है। छोटी शहजादी उसको अपना शौहर बनाना चाहती है। आपको इससे अच्छा दामाद शायद ही मिल सके। बादशाह ने इस खुशखबरी के लिए नौकरों को कीमती इनामात दिए और कुछ दिन बाद उसने ताहिर से अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। बादशाहजादी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ताहिर को अपना वादा याद था जो उसने अपनी दौर की मंगेतर से किया था। वो शहजादी रूम की तरफ देखता भी नहीं था, बल्कि उससे कभी बात तक नहीं करता था। वो बेचारी करती रहती, रातों को पलक तक पलक रोती और सोचती, आखिर ये मुझसे जरा सी भी मोहब्बत क्यों नहीं करते। उसने बार बार ताहिर से उसकी वजह पूछी, लेकिन ताहिर हर दफा खामोश रहा। उकता कर उसने शहजादी से कहा, आप अपने वालिद से कहिए कि ताहिर के दरिया किनारे तक जाना चाहता है। शहजादी दौड़ती हुई अपने बाप के पास गई और उससे कहा, वालिद मुहतरम,
वो जरा दरिया के किनारे जाकर बैठना चाहते हैं। ये खबर सुनकर बादशाह खुशी से फूला न समाया और उसने फौरन हुक्म दिया कि दरिया के किनारे बज़्म शादमानी का इंतजाम किया जाए। थोड़ी देर में ताहिर आ गया। उसका चेहरा उदास था। उसके होठों पर मुस्कुराहट नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उदास नजरों से दरिया की तरफ देखता रहा। जहरा दिन रात बराबर बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन उसके जालिम बाप ने एक दूसरे बादशाह के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। एक दिन जहरा ने ख्वाब में देखा कि वो ताहिर के साथ इसी बाग के अंदर टहल रही है और जाग उठी। अगले दिन जहरा सोने से भरी एक तश्तरी लेकर कारवा सराय में गई। वहाँ एक काफला बानी ताजरों की रहनुमाई करने वाला एक आदमी रहता था। सोने वाली तश्तरी उस आदमी को देकर उससे मिन्नतें करने लगी। मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है, मेहरबानी करके ताहिर को तलाश कीजिए, मुझे उसकी कोई खबर ला दीजिए। काफला बान राजी हो गया। वो अपने ऊंट पर सवार होकर ताहिर को तलाश करने निकल गया। काफला बान एक दिन एक दरिया के किनारे पर निकला। उसने देखा कि दरिया के ऊंचे किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। काफला बान ने सोचा कि मुमकिन है ताहिर उन्हीं लोगों के बीच हो, जरा उसका नाम लेकर तो देखूं। ये सोचकर वो गाना गाने लगा। मैं ठहरा काफले बान, दुनिया भर में घूमता हूँ, ताहर जान को ढूंढता हूँ, कहाँ गए तुम ताहर जान। और जवाब में वो भी गाने लगा, ठहरो ठहर काफले बांध, अपना गीत जरा फिर गाओ, देखो और करीब आ जाओ, ये बैठा है ताहिर जान। काफला बंद फिर गाना गाने लगा। नामों से है भरा जहान, पर जहरा का सुन कर नाम अपना, सारा चैन आराम खो बैठेगा ताहर जान। ताहिर उठ खड़ा हुआ और वो दौड़कर काफले बांध के पास गया और उसके ऊंट की गर्दन से लिपटकर कहा, मुझको जहरा के पास ले चलो। जहरा की तो शादी हो चुकी है, वो तो अब कारा बातिल की बीवी बन चुकी है। अब आप उसको देखकर क्या करेंगे? मैं बस इतना जानना चाहता था कि आप जिंदा है या नहीं। यहाँ बादशाह की लड़की से मेरी शादी कर दी गई है, लेकिन मैंने आज तक कभी नजर उठाकर ना उसकी तरफ देखा है और ना ही कभी उससे कोई बात की है। मुझको जहरा के पास ले चलो, मैं तैयार हूँ। काफले बान ने बिलाखिर राजी होकर कहा। ताहिर उसी वक्त महल पहुंचा। शहजादी से कहा, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए हैं इनके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज मुझे जहरा का पता चल गया है और मैं अभी जा रहा हूँ। शहजादी ने पूछा, क्या दो वाली जहरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ताहिर ने जवाब दिया, और ये भी दुरुस्त है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे दुनिया में जहरा से ज्यादा कोई भी अजीज नहीं। इसी वक्त ताहिर और काफले बान दोनों ऊंटों पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते वो एक दिन सुबह के वक्त अपने शहर पहुंच गए। ताहिर चुपके से महल में दाखिल हो गया। इस वक्त जहरा महल के बाग में सो रही थी। जहरा जाग, ताहिर आ गया। जहरा ने अपने महबूब की आवाज सुनी और उसने आंखें खोल दी। वो खुशी से हंस भी रही थी और रो भी रही थी कि अचानक काहराबाज की बहन ने उनको देख लिया। वो दौड़ी हुई अपने भाई के पास पहुंची और उससे कहा, ताहिर क्या है? वो और जहरा दोनों बाग के कोने में बैठे हुए हैं। काहराबाज गुस्से में भरा अब्बा बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात उसको सुना दी। शाह ने संगदल आवाज में हुक्म दिया, इन दोनों को कत्ल कर दो ताकि कोई और हमारी इज्जत और सल्तनत से खेलने की जुर्रत ना करे। महल में एकदम सुनाटा छा गया। सिपाही आगे बढ़े और लम्हों में ज़ारा और ताहिर की जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। इनकी लाशों को शहर के दरवाजे के बाहर दफन कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, मगर लोगों ने देखा कि जहां ताहिर को दफन किया गया था वहां से सुर्ख गुलाब खिलने लगे और ज़ारा की कब्र से सफेद गुलाब निकले। दोनों की कब्रें आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गईं और वो गुलाब आपस में लिपटकर ऐसे जुड़ गए जैसे जिंदगी में इनका प्यार कोई जुदा ना कर सका था।